طلبہ و طالبات کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جماعت ہشتم کا سبق نمبر 2 ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے ویڈیو میں معلم اخلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ ہم نے اچھی طرح بلند خوانی کی، اس کی وضاحت، اس کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کو سکھائے۔ آج ہم اس کا صفحہ نمبر 6 پر جو مشق ہے وہ ہم کریں گے، جو کہ تعلق رکھتی ہے حصہ گرامر سے۔ تو حصہ گرامر سمجھنے کے لیے آپ تیار ہو جائیے، جو کہ مرکب ہے۔ مرکب کسے کہتے ہیں، مرکب کی اقسام کتنی ہوتی ہیں وہ آپ کو سمجھائی جائیں گی۔ چلے اب ہم شروع کرتے ہیں، جو کہ مشق اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ مشق نمبر 2 جماعت ہشتم۔ پہلا جو پرپل کلر سے لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے مرکب۔ پہلے آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ مرکب کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں شروع میں نا کچھ جملے لکھے ہیں چھوٹے چھوٹے، جو کہ ہم پڑھتے ہیں۔ جمشید کا کوٹ، رضیہ کی کتاب، سفید برف، قلم اور دوات، مسجد کا مینار۔ یہ جو جملے ہیں یہ دو لفظ کو اکٹھا کر کے اور بیچ میں کا اور کی اور کا اضافہ کر کے کیے گئے ہیں۔ یہ جو چھوٹے جملے ہوتے ہیں پیارے بچوں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، بات جو ہے وہ نامکمل رہتی ہے۔ اب کتاب میں کیا لکھا ہے پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اوپر کی ان مثالوں میں جملہ نمبر 1 جو کہ میں نے پڑھا، جمشید کا کوٹ، 2 کلمے ہیں۔ کلمے کہتے ہیں بیٹا لفظ کو، جمشید الگ ہے اور کوٹ الگ ہے، تو یہ کیا ہو گئے، 2 کلمے ہو گئے۔ کلمہ مطلب جملہ۔ اسی طرح رضیہ اور کتاب، سفید اور برف، قلم اور دوات، مسجد اور مینار، 2 کلمے ہیں۔ اچھا، یہ کلمات آپس میں ملا دیے گئے ہیں۔ مطلب کیا ملا دیے ہیں، جمشید اور کوٹ کو آپس میں کا کے ساتھ ملا دیے گئے ہیں، اور یہ ملے ہوئے کلمے مرکب کہلاتے ہیں۔ لہذا یہ سب کیا ہیں، یہ چھوٹے جملے مرکب ہیں۔ اب مرکب کی جو صحیح تعریف ہے، جو کہ میں نے آپ کو کام کرنے کے لیے بھی دی ہے، تو آپ یہاں سے اس کو بریکٹ میں کر لیں، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اب میں پڑھ رہی ہوں، میں نے آپ کو سوال دیا ورکنگ میں کہ مرکب کسے کہتے ہیں، تو آپ تعریف میں لکھیے گا 2 یا 2 سے زیادہ کلموں کے مجموعوں کو مرکب کہتے ہیں۔ دیکھیں اب 2 یا 2 سے زیادہ جملے ہیں نا، جمشید بھی ہے، کوٹ بھی ہے اور کا بھی ہے، تو یہ کلمے مل کر کیا بن گئے، ایک مکمل جملہ بن گیا۔ تو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں کے مجموعے کو، مطلب اس میں 1 2 3 لفظ کا مجموعہ شامل ہو گیا، تو ان 3 لفظ کے مجموعے کو کیا کہیں گے، ہم مرکب کہتے ہیں۔ تو میں نے جو آپ کو ورکنگ میں کام دیا ہے کہ مرکب کی تعریف لکھیے، تو آپ یہاں سے لکھیے گا، اس کو بریکٹ کر لیا میں نے، آپ بھی اپنی کتاب میں بریکٹ کر لیجیے گا۔ یہ پرپل کلر سے لکھا ہوا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ کلموں کے مجموعوں کو مرکب کہتے ہیں۔ یہ ہو گئی مرکب کی صحیح تعریف۔ اب اگلا میں نے سوال دیا ہے کہ مرکب کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اس کے برابر میں لکھا ہوا ہے، آپ جواب لکھیے گا۔ مرکب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 مرکب ناقص، نمبر 2 مرکب تام۔ سوال میں ریپیٹ کر رہی ہوں، مرکب کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، آپ جواب میں لکھیے گا مرکب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نمبر ڈالیے گا، نمبر 1 مرکب ناقص، نمبر 2 مرکب تام۔ اب مرکب ناقص کیا ہوتے ہیں، یہ میں نے سوال دیا ہے، تو جو میں سمجھاؤں گی وہ آپ اس کی تعریف میں لکھ لیجیے گا۔ دوسرا میں نے سوال دیا ہے مرکب تام کیا ہوتا ہے، جو میں بتاؤں گی کہ کہاں سے کہاں تک لکھنا ہے، تو وہ آپ لکھ لیجیے گا۔ پہلے ہم آتے ہیں مرکب ناقص۔ مثالیں لکھی ہوئی ہیں، جمشید کا کوٹ، رضیہ کی کتاب، راشد کا قلم، جمیلہ کا دوپٹہ وغیرہ ایسے مرکب ہیں جو نامکمل ہیں۔ دیکھیں بیٹا ان نامکمل جملے سے کیا ہوتا ہے کہ مطلب پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جمشید کا کوٹ آدھا جملہ ہے، اگر ہم بولیں کہ جمشید کا کوٹ سفید رنگ کا ہے تو یہ پورا جملہ بن گیا، پوری بات سمجھ میں آ گئی ہے۔
या हम ये लिखें अगर कि जमशेद का कोट कहाँ है, तो हमें पूरा जुमला समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर ये जुमला नामुकम्मल है। जो चीज़ नामुकम्मल हो, पूरा मतलब समझ में नहीं आए, तो ऐसा मुरक्कब जिससे पूरा मतलब समझ में ना आए क्या कहलाता है? मुरक्कब नाक़िस। रज़िया की किताब, अब आगे रज़िया की किताब कैसी है, छोटी है, बड़ी है, खूबसूरत है, कहाँ रखी है, कहाँ नहीं रखी है, तो मतलब वाज़ेह नहीं हो रहा है। राशिद का कलम छोटा है, बड़ा है, कलम में इंक है या नहीं, कलम से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। जमीला का दुपट्टा हरा है, नीला है, पीला है, हमें क्या मालूम, क्योंकि बात यहाँ पर नामुकम्मल है। तो नामुकम्मल जुमले जो होते हैं जिनसे पूरा मतलब समझ में ना आए, आधी बात समझ में आए, तो वो क्या होते हैं? मुरक्कब नाक़िस। अब मैंने आपको वर्किंग में दिया है कि आप मुरक्कब नाक़िस की तारीफ़ लिखें, तो आप कहाँ से लिखेंगे? पर्पल कलर से जो लिखा हुआ है नीचे वाली लाइन पे आप इसको ब्रैकेट कर लें। ऐसा मुरक्कब यहाँ से लेकर कहलाता है तक आप मुरक्कब नाक़िस की तारीफ़ लिखेंगे। मैं एक दफ़ा तारीफ़ दोबारा दोहरा देती हूँ। ऐसा मुरक्कब जिससे पूरा मतलब समझ में ना आए मुरक्कब नाक़िस कहलाता है। ये मुरक्कब नाक़िस की आपने पूरी तारीफ़ लिखी। नीचे लिखा है मुरक्कब नाक़िस की इस वजाहत के बाद आप अंतर्जा ज़ेर से मुरक्कब नाक़िस अलग करें। आप ये अपनी उर्दू की किताब में ही ये काम कर लीजिएगा। अब देखिए, कुछ मुकम्मल जुमले हैं, कुछ नामुकम्मल जुमले। आपको वो नामुकम्मल जुमले ढूंढना है इसमें से कि जिससे पूरा मतलब समझ में ना आए। पहला जुमला है जमशेद और ज़ुबैर दोस्त हैं। देखिए, इसमें पूरा जुमला समझ में आ रहा है, पूरी बात समझ में आ रही है कि इसमें क्या बोला जा रहा है कि जमशेद और ज़ुबैर दोस्त हैं। ये हर सिंपल आदमी की समझ में आएगा और बात समझ में आ रही है। अब नामुकम्मल क्या हो जाएगा? तारीख की किताब। तारीख की किताब जो है वो मुरक्कब नाक़िस होगी। ये पुरानी किताब है, ये पूरा जुमला समझ में आ रहा है, पूरी बात समझ में आ रही है। बड़ा आदमी, इनकम्प्लीट बात है, पूरी बात समझ में नहीं आ रही, तो बड़ा आदमी मुरक्कब नाक़िस। असलम की साइकिल चोरी हो गई, पूरी बात समझ में आ रही है कि असलम की साइकिल के साथ क्या हुआ। मैं और हामिद बाज़ार गए, पूरी बात समझ में आ रही है कि हामिद और मैं कहाँ गए? बाज़ार। हमीद का भाई, आगे बिल्कुल बात समझ में नहीं आ रही कि हमीद के भाई के साथ क्या हुआ, तो ये हमीद का जो भाई है वो मुरक्कब नाक़िस कहलाएगा। गरीबों और मिस्किनों को और के साथ मिला दिया, तो ये क्या हो गया? ये भी नामुकम्मल बात है जो कि मुरक्कब नाक़िस में आ जाएगा। आका और ग़ुलाम लिखा हुआ है, कोई पूरी बात नहीं लिखी हुई, पूरा जुमला समझ में नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा? मुरक्कब नाक़िस। अब जैसे हमने पढ़ा था कि मुरक्कब की कितनी किस्में होती हैं, हमने पढ़ा मुरक्कब नाक़िस, जो कि आपको समझा दी कि मुरक्कब नाक़िस क्या होता है। अब आगे हेडिंग आ रही है मुरक्कब ताम, दूसरा है मुरक्कब ताम। अब हम मुरक्कब ताम को समझने की कोशिश करते हैं कि मुरक्कब ताम क्या होता है। वो मुरक्कब जिससे सुनने वाले को पूरी बात समझ में आ जाए मुरक्कब ताम कहलाता है। इससे मुरक्कब मुफीद या जुमला भी कहते हैं। देखें, मुरक्कब नाक़िस जिससे पूरा मतलब समझ में ना आए। मुरक्कब ताम वो मुरक्कब, वो जुमला जिससे सुनने वाले को पूरी बात अच्छी तरह समझ में आ जाए, मुरक्कब ताम कहलाता है। इसका दूसरा नाम भी है जो कि दिया गया है, मुरक्कब मुफीद या जुमला भी कहते हैं। जैसे हम आपको कहते हैं कि जुमले बनाइए, तो आप जुमले में पूरी बात लिखते हैं और ख़त्म करते हैं, जिससे आपके उस्ताद को समझ में आ जाता है कि हाँ ये सही जुमला है, और वो करेक्ट हो जाता है जिसमें बात पूरी समझ में आ जाए। अब देखिए, मिसाल लिखी हुई है, मैं पढ़ता हूँ, पूरी बात समझ में आ रही है कि कौन पढ़ रहा है? मैं, मतलब मैं खुद पढ़ता हूँ। रज़िया ख़त लिखती है, पूरी बात समझ में आती है कि ख़त कौन लिख रहा है? रज़िया ख़त लिखती है। कामिल की दावात टूट गई है, दावात कहते हैं जो आप पेन में इंक भरते हैं ना, उसको दावात कहते हैं, सियाही को। तो कामिल की दावात किसकी टूट गई है? कामिल की टूट गई है, पूरी बात समझ में आ रही है। अकरम की साइकिल पुरानी हो गई है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से जुमला लिखा हुआ है, जुमला हमें समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है। असल चीज़ होती है बात, कही जाने वाली बात समझ में आनी चाहिए। समझ में आ गई जुमले में, तो वो क्या हो जाएगा? मुरक्कब ताम कहलाएगा।
जावेद की किताब गुम हो गई। किसकी किताब गुम हो गई? जावेद की किताब। तो इस जुमले में पूरी बात हमें अच्छी तरह से समझ में आ रही है। जमात हश्तुम का सबक नंबर 2 मौल्लिम इखलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज हमने मश्क की। मश्क में हमने आपको हिस्सा ग्रामर सिखाया, जिसमें बताया मुरक्कब क्या होता है। तो मैं आपको एक दफ़ा और रिपीट कर देती हूँ कि 2 या 2 से ज़्यादा कलमों के मजमूओं को मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब की कितनी अक़साम होती हैं? मुरक्कब की 2 होती हैं, मुरक्कब नाक़िस, मुरक्कब ताम। हमने पढ़ा मुरक्कब नाक़िस के बारे में, मुरक्कब ताम के बारे में। मुरक्कब नाक़िस क्या होता है? मुरक्कब नाक़िस ऐसा मुरक्कब जिससे पूरा मतलब समझ में ना आए, मुरक्कब नाक़िस कहलाता है। मुरक्कब ताम क्या होता है? वो मुरक्कब जिससे सुनने वाले को पूरी बात समझ में आ जाए, मुरक्कब ताम कहलाता है। तो इस पूरी इससे ग्रामर का काम मैंने आपको आपकी वर्किंग में दिया है जमात हश्तुम में। तो आपको इस तरह तो वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और वहाँ पे अच्छी तरह से करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी मश्क अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और आपने अच्छी तरह जहन नशीन कर लिया होगा। इंशाअल्लाह अगला सबक जब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, इनाम का मुस्तहक, जो कि बहुत जल्द शुरू किया जाएगा, और सबक नंबर 2 मौल्लिम इखलाक का काम आपको बहुत जल्द प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपको बताया जाएगा SMS और व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए। अगले सबक के लिए, अगले वीडियो के लिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।